Hi everyone, this is Sunil Mishra from Success Series. This is a new series where we will cover the syllabus of class 10th mathematics. So today we are going to start a new chapter, chapter 3, linear equation in two variable, and this is the part 1 of this chapter. Topics to be covered. First, introduction, graphical solution of linear equation, and exercise 3.1. Let us take a practical problem where we use linear equation in two variable to deal with it. Akila went to a fair in her village. She wanted to enjoy the rides on the giant wheel and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of time of ride she had on the giant wheel. If each ride cost rupees 3 and the game of hoopla cost rupees 4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla, provided she has spent 20 rupees. For solving such problems, we may use linear equation in two variable. So अखिला अपने गांव के एक मेले में गई. She wanted to enjoy a ride on this giant wheel. वो इस giant wheel की सवारी करना चाहती है and she also wants to play this hoopla game. The number of times she played hoopla, जितने बार उसने hoopla खेला उसका just half times उसने इस giant wheel में ride ली. If the cost of each ride is rupees 3, अगर हर एक राइड की कॉस्ट है 3 rupees and the game of hoopla cost rupees 4 और इस hoopla गेम की जो कॉस्ट है वो है rupees 4. So you have to tell how many times she has taken the ride of this giant wheel. आपको बताना है कि कितने बार उसने इस giant wheel की सवारी की और कितने बार उसने इस hoopla गेम को खेला, provided she has spent 20 rupees. और क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल उसने 20 rupees स्पेंड किए. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से डील करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0 is called a linear equation in two variable x and y. So जो भी इक्वेशन आपकी ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में होगी उसको आप कहोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x and y. तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x and y के फॉर्म में होगी. x और y आपके दो वेरिएबल्स हैं एंड a, b and c, a, b, c are real numbers. a, b, c आपके real numbers हैं. ओके एंड a and b are not both zero. a और b दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते. अगर आपका a जीरो हो जाएगा दैट मीन्स ax पूरा जीरो हो जाएगा एंड अगर आपका b जीरो हो जाएगा उस केस में आपका by जीरो हो जाएगा एंड दिस गिव्स c is equal to 0 which is not a linear equation. Every solution of the equation is a point on the line representing it. Each solution x comma y of a linear equation in two variable ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on a line representing the equation and its vice versa. देखिए आपने क्लास 10 में पढ़ा था अगर आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली शो करेंगे देन इट शोज अ लाइन. सो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा एंड आपको पता है किसी भी लाइन में देयर इनफाइनाइट पॉइंट्स, किसी भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो हर एक पॉइंट जो इस लाइन में आएगा वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. लेट सपोज लाइन की इक्वेशन है आपकी ax plus by plus c is equal to 0 और इस लाइन में कोई पॉइंट आ रहा है 1, 2. अगर मैं 1, 2 जो है इस इक्वेशन में रखूंगा ax plus by plus c में रखूंगा तो उस केस में ax plus by plus c की वैल्यू हो जाएगी 0. ओके और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है. मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका 3, 4. अगर कोई भी लाइन 3, 4 से पास होगी तो इस पॉइंट 3, 4 को सेटिस्फाई करेगी. तो दैट मीन्स अगर 3, 4 से पास होती कोई लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0, उस केस में अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं और y की वैल्यू 4 रखूंगा तो इस इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी. If two linear equations are in the same two variables x and y, then it is called the pair of linear equation in two variables. अगर दो linear equation में same variable है, let's suppose x and y same variable है, then the pair of equation is called the pair of linear equation. So उन दोनों equations को हम कहेंगे pair of linear equation. The general form for the pair of linear equation in two variables x and y is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Okay, and a2x plus b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है। एंड यहाँ पे अगर बात करें A1, B1, C1, A2, B2, C2, ऑल दीज आर रियल नंबर, ये सारे आपके रियल नंबर्स होंगे। और कुछ एग्जांपल्स गिवन है लीनियर इक्वेशन के, जैसे यहाँ पे 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and 9x minus 2y plus 8 is equal to 0. This is the one pair of linear equation, and the other pair of linear equation is 5x is equal to y and minus 7x plus 2y plus 3 is equal to 0. This is the another pair of linear equation in two variables. Given two lines in a plane, only one of the following three possibilities can happen. The two lines will intersect at one point. The two lines will not intersect, that is they are parallel. The two lines will be coincident. अगर दो लाइन किसी प्लेन में लाई करेंगी तो उन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है वो दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे मिले तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। हो सकता है वो दोनों लाइंस कहीं ना मिले, उनको हम कहेंगे पैरेलल लाइन। एंड हो सकता है कि वो लाइन जो है ओवरलैपिंग हो तो उनको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। If two lines intersect exactly at one point, then these two lines will be intersecting lines. If two lines will never intersect, that means they are parallel. If two lines intersect at more than 2 points, that means these two lines will be overlapping lines. These three figures represent all three possibilities. The first one is representing intersecting lines. These two lines are intersecting at one point, and the second one is representing parallel lines. These two lines will never intersect when they are produced on both the sides. And the third is representing coincident lines, means overlapping lines. These two lines are intersecting at more than one point. Let us start exercise 3.1. Question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Is it interesting? Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 years पहले, I was 7 times as old as you were then. मेरी उम्र आपकी उम्र की 7 टाइम्स थी। 7 years पहले मेरी उम्र आपकी उम्र की 7 टाइम्स थी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, इसके अलावा आज से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो आप मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, the present age of आफ्ताब bx, ओके। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज है आपकी y years। तो 7 years एगो की अगर हम बात करें, 7 years एगो क्या कंडीशन थी, 7 साल पहले क्या कंडीशन थी, आफ्ताब की एज क्या होगी, एज ऑफ आफ्ताब 7 years पहले आफ्ताब की क्या एज होगी। अगर प्रेजेंट एज आफ्ताब की x है तो 7 years पहले आफ्ताब की एज होगी x माइनस 7। सिमिलरली एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब की डॉटर की जो एज होगी वो होगी आपकी y माइनस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago the age of आफ्ताब which is x minus 7, this is 7 times of his daughter's age which is y minus 7। ठीक है, तो आपने क्या किया, आफ्ताब की एज x minus 7 है, this is equal to the 7 times of his daughter age which is y minus 7। इसे हम सॉल्व करेंगे, x minus 7, 7 into y 7y and 7 sevens are 49। We'll transfer 7y and minus 49 to left hand side, x minus 7y plus minus 7 and plus 49, okay, is equal to 0. This gives value of equation, okay, I'm writing here, this gives
x minus 7y plus 42 is equal to 0. This is our first equation. Now in the case second, also 3 years from now, और आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be. तो आफ्ताब कह रहा है आज से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुना हो जाएगी. तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी? x plus 3. एंड आफ्ताब की डॉटर की एज क्या होगी? y plus 3. तो आफ्ताब की जो एज है x plus 3, ये हो जाएगी 3 times ऑफ हिज डॉटर्स एज विच इज y plus 3. तो आपने आफ्ताब की डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट द एज ऑफ आफ्ताब. Let us solve this. So this gives x plus 3 is equal to 3y plus 3 3 is 9. Okay, and this gives x minus 3y plus 3. This is minus 6 minus 9 is equal to 0, and this gives x minus 3y minus 6 is equal to 0. Okay, this is our second equation. So we have algebraically just solve this equation. हमने इसके algebraic equations बना लिए. अब हम क्या करेंगे, इन equations से हम line graph बनाएंगे. From equation first, x is equal to minus 42 plus 7y. तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे पहली इक्वेशन से, एंड फिर आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे. सो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है. अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो 7 into 5, 7 5 is 35 plus 35 minus 42 gives minus 7. तो x की वैल्यू y की वैल्यू 5 रखने पे x की वैल्यू आ रही है आपके minus 7. तो आप यहाँ वैल्यू रख देंगे. I have substituted the value of y is equal to 5 and 7 5 is 35. 35 plus 35 minus 42 gives minus 7. And then if I put y is equal to 6, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखता हूँ, इस इक्वेशन में मैं अगर y की वैल्यू 6 रखता हूँ तो x की क्या आएगी वैल्यू? तो y की वैल्यू 6 रखने में 7 6 are 42 plus 42 and minus 42 gives 0. So आपने यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखी, x की वैल्यू आ गई 0. इसी तरीके से यहाँ पे आप y की वैल्यू रख दीजिए 7. ओके, इफ आई पुट y इज इक्वल टू 7, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 7 रखूंगा तो 7 7 are 49 plus 49 and minus 42 gives plus 7. ओके, सो आपने 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं इस इक्वेशन से, और इन इक्वेशंस को आप इस ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे एंड देन यू विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन. सो हियर फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आर, जो आपके इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर्ड पेयर है -7 और 5. तो x है आपका -7, y है 5. तो x इज -7 हियर एंड y इज 5. तो ये आपका कोऑर्डिनेट है. पहला कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया. ठीक है, पहला पॉइंट जो है आपका -7, 5 वो यहाँ इस जगह पे लाई करेगा. तो यू हैव टू मार्क दिस पॉइंट. ठीक है, आपका जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0, 6. सो x इज 0, x0 यहाँ पे होगा एंड y इज 6. सो दिस इज द पॉइंट 0, 6. तो आप इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे. और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7, 7. x इज 7, y इज 7. तो x आपका 7 यहाँ पे एंड y 7 यहाँ पे. तो 7, 7 ये आपका थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो इसको भी आप मार्क कर लेंगे. नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग दीज 3 पॉइंट्स. आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इन तीनों पॉइंट से पास होगी. सो वो जो लाइन होगी वो इस इक्वेशन की लाइन होगी, वो इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगी. So this is the line which pass through these 3 points. So ये इक्वेशन की आपकी ये लाइन ग्राफ है. तो आपने इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया. इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैंने यहाँ से x की फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 plus 3y. एंड आप यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 0, अगर x की y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो y की वैल्यू 0 करने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6. अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू रख दीजिए -1, अगर y की वैल्यू आप -1 रखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 3 into -1. 3 into -1 is -3 एंड +6, सो 3 आएगी. अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं -2, ओके, -2 रखने पे 3 into -2 -6 and +6 will give 0. So these are the 3
coordinates of points and you have to just plot these points on this graph paper. ये फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 6,0। तो आप देखेंगे ग्राफ पेपर यहाँ पे 6,0 कहाँ लाई कर रहा है, तो x is 6, y 0। तो 6,0 यहाँ पे लाई करेगा, दिस इज 6,0, हियर x is 6 and y is 0। सो यू हैव टू मार्क दिस पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके 3, -1, x is 3 and y is -1। तो 3, -1 लाइज हियर, तो 3, -1 यहाँ पे लाई करेगा, यू हैव टू मार्क दिस पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, -2, x is 0 and y is -2। तो x is 0 and y is -2। ओके, सो ये पॉइंट आपका यहाँ लाई करेगा, यहाँ पे भी आप इसे मार्क कर लेंगे। नाउ यू हैव टू ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। आप इन तीनों पॉइंट से पास होकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों ही तरीके से सॉल्व कर लिया। ग्राफिकल मेथड में आप इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो आपने ग्राफ बना लिया दोनों इक्वेशंस का, एंड एल्जेब्रिकली आपने दोनों इक्वेशंस की एल्जेब्रिक इक्वेशंस भी बना ली। सो दिस क्वेश्चन इज डन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. So एक क्रिकेट कोच ने 3 बैट्स और 6 बॉल्स 3,900 रुपीज की परचेज करी। उसके बाद फिर उसने एक और बैट और 3 बॉल उसी तरीके के परचेज करा 1,300 रुपीज की। ठीक है, आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो आप मान लीजिए कि एक बैट की कॉस्ट है ₹X and the cost of one bat, one ball be ₹Y. So in case first, coach purchase 3 bats. So case first में कोच ने 3 bats purchase करे, तो 3 into the cost of one bat is ₹X, तो 3x plus 6 balls purchase करी उसने, cost of 6 balls will be 6y and the total cost था वो था 3,900. So this is our first equation. ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। In case second, she purchased a bat, एक bat purchase किया उसने, the cost of one bat will be x and 3 more balls purchase करी उसने plus 3y and the total cost, इनका total cost है 1 bat और 3 balls का जो total cost है वो आपका 1,300 रुपीज है। This is our second equation. So we have represented just we have represented this situation algebraically। हमने इस situation को algebraically represent कर दिया। Now we'll represent this situation graphically. For that we will find the value of x from case first. So 3x is equal to 3,900 minus 6y, and the value of x will be 3,900 minus 6y upon 3. So from this equation we also find the value of x. तो x की वैल्यू हम यहाँ से ही फाइंड करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1,300 minus 3y। तो अब आप टेबल ड्रॉ करेंगे दोनों केसेस में और x और y के एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो केस फर्स्ट में अगर y की वैल्यू आप रखते हो 500, अगर आपने y की वैल्यू रखी है 500, y इज इक्वल टू 500 आप रखते हो पहली वाले केस में, तो x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 3,900 माइनस 6 इंटू 500 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 3,900 minus 3,000, 6 into 500 gives 3,000, so it gives 900 upon 3 and 900 upon 3 को सॉल्व करेंगे, it gives 300। so अगर आप y की वैल्यू रखते हो 500, x की वैल्यू आ रही है आपकी 300। इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू रखोगे, अगर आप y की वैल्यू रखते हो 600, अगर आप y की वैल्यू 600 रखते हो, x की वैल्यू क्या आएगी? चलो सॉल्व करते हैं। आपने y की वैल्यू रखी है यहाँ पे 600, अगर आप y की वैल्यू 600 रखते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3,900 माइनस 6 इंटू 600 अपॉन 3, so this gives 3,900 minus 3,600 upon 3, this gives 300 upon 3 and 300 upon 3 is 100।
तो इफ आई पुट y इज इक्वल टू 600, अगर मैं y की वैल्यू 600 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 100। इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू रखते हो 700, अगर आप y की वैल्यू को 700 रखते हो, x की वैल्यू क्या आती है, 700 रखते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपने रखी 700, तो 7 6 42, 3900 minus 4200, so this gives minus 300 upon 3 and this gives minus 100. So if I put y is equal to 700, अगर मैं y की वैल्यू 700 रखता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी minus 100. So we have find 3 points for this equation. हमने इस equation के लिए 3 points find कर लिए. Now we'll find the coordinate for our second equation. हम second equation की coordinate find करेंगे. अगर हम second equation में y की वैल्यू 400 रखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम यहाँ 400 रखेंगे तो 3 into 400 gives 1200 and 1200 को हम माइनस करेंगे 1300 से, it gives 100. अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखता हूँ 400 तो x की वैल्यू आएगी आपकी 100. तो y की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू 100 रखने पे y की वैल्यू 400 रखने पे x की वैल्यू आ रही है आपकी 100. सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं 300, अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 300 रखनी है तो 3 3 9, ओके, सो 1300 में से 900 माइनस करेंगे, इट गिव्स 400. सो y की वैल्यू अगर आप 300 रखेंगे तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आएगी आपकी 400. सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखेंगे 500, अगर y की वैल्यू आप 500 रखते हैं तो 1300 माइनस 3 into 500, so it gives minus 1500 and this is 1300, and यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी this gives the value of x and x is equal to आएगा आपका माइनस का 200, माइनस 200. ओके, सो यहाँ पे अगर आपने y की वैल्यू रखी 500, y की वैल्यू आपने 500 रखी तो x की वैल्यू आई आपकी माइनस 200. अब इन पॉइंट्स को, आप इन कोऑर्डिनेट्स को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफिकली प्लॉट करोगे और लाइन ग्राफ बनाओगे इन दोनों इक्वेशंस का. नाउ वी विल लोकेट दीज पॉइंट ऑन ग्राफ. सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन द फर्स्ट पॉइंट इज x is 300, y is 500. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट जो है x है 300, y है 500. तो x 300 आपका ये है और y 500 ये है, तो इस पॉइंट को आप मार्क कर देंगे. फॉर सेकेंड पॉइंट x is 100, सेकेंड पॉइंट के लिए x 100 है और y है आपका 600. So x 100 and y 600 lies here. यहाँ पे लाई करेगा, इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे. एंड थर्ड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स है x is minus 100, x is minus 100 here and y is 700, y is 700 is here. ठीक है, आप इस पॉइंट को मार्क कर देंगे. तो नाउ विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग दीज 3 पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते एक लाइन बनाएंगे जो इन तीनों पॉइंट से पास होगी. So this is the graphical representation of first equation. ये first equation का graphical representation है. Same we will do with equation second. हम इस तरीके से equation second को भी graphical represent करेंगे. The coordinate of first point के coordinate है आपका x है 100, y है 400. x is 100 and y is 400. It lies here. x is 100, y is 400. We'll mark this point. Coordinate of second point, x is 400 and y is 300. x आपका 400 है और y 300 है. So this lies here. तो इस पॉइंट को आप मार्क कर देंगे. तो कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x is minus 200, x आपका minus 200 है here and y is 500, तो y 500. तो this point lies here. ये पॉइंट आपका यहाँ लाई करेगा, आप इस पॉइंट को मार्क कर देंगे. Now we'll draw a line passing these 3 points. इन तीनों पॉइंट से पास होती एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम. So this is the graphical representation of second equation. So by this way we have solved this equation graphically and algebraically. This is the third and the last question of exercise 3.1. The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की किसी दिन टुगेदर कॉस्ट है 160 और एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स की टोटल कॉस्ट है 300. आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पर 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट
सेम है. Let us start this question. Let us take the cost of 1 kg apples be rupees X and the cost of 1 kg grapes be rupees Y. In case first, the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes is rupees 160. Cost of 2 kg apples 2x plus cost of 1 kg apple will be y. This is equal to 160. This is our first equation. ये आपकी first equation है. And इसी तरीके से हम case second, this is the case first, ये आपका पहला case है. And इसी तरीके से हम case second भी find करेंगे second case में. Case second. ठीक है, second case में यहाँ पे given है the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. 4 kg apples and 2 kg grapes की total cost है 300. So 4 kg apples की cost कितनी होगी? 1 kg की x है तो 4 kg की 4x हो जाएगी. And 2 kg grapes की cost कितनी होगी? 1 kg grape की cost y रुपीज है तो 2 kg की cost होगी 2y. And इसकी जो total cost है 4 kg apples and 2 kg grapes की total cost है 300. तो यहाँ पे आएगा आपका 300. So this is our सेकेंड इक्वेशन. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. आपने इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन दे दिया है. अब हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो y वैल्यू ऑफ y विल बी 160 minus 2x. ओके, नाउ इफ आई पुट वैल्यू ऑफ x हियर 50, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 50 रखता हूँ, सो 2 into 50 100 हो जाएगा. और 160 में से अगर मैं 100 माइनस करूंगा इट गिव्स 60. एंड अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ 60, x की वैल्यू अगर मैं 60 रखता हूँ तो 2 into 60 विल बी 120. और 160 में से मैं 120 माइनस करूंगा इट गिव्स 40. एंड फाइनली अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 70 रखता हूँ, मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 70 रखी तो 70 2 जा 140 और 160 में से 140 माइनस करेंगे सो इट गिव्स 20. अब हम इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पेपर में लोकेट करेंगे. तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 50, 60. सो आप देखिए x 50 यहाँ पे है और y 60 ये है. तो 50, 60 लाइज हियर. तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे 50, 60. सेकेंड पॉइंट है आपका 60, 40. x is 60 एंड y is 40. तो दिस इज 60, 40. तो आप इस पॉइंट को भी मार्क कर लेंगे. एंड जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है 70, 20. x is 70, x आपका 70 है एंड y है आपका 20. तो आपने थर्ड पॉइंट को भी ग्राफ पेपर में मार्क कर लिया. अब आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे और एक लाइन बन जाएगी. ठीक है. सो जो आपकी जो इक्वेशन है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन ये है. आपने इसे ग्राफिकली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया ऑन अ ग्राफ पेपर. इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक 2s कॉमन. आप 2 कॉमन ले सकते हैं एंड उसको आप राइट हैंड साइड सेंड करेंगे तो बन जाएगा 300/2 एंड 300/2 विल बी 150. तो इक्वेशन ये चेंज हो जाएगी. एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ y विल बी 150 minus 2x. नाउ व्हाट वी विल डू, इफ आई पुट वैल्यू ऑफ x 70, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 70 रखता हूँ सो 2 into 70 140. 150 minus 140 will be 10. and if I put value of x 80, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 80 रखता हूँ so 80 into 2 160 minus 160 and this is plus 150 so it gives minus 10. and if I put value of x 75, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 75 रखता हूँ तो 2 into 75 will be 150. 150 minus 150 will be 0. now we will locate these 3 points on the graph. तो x है आपका 70 और y है आपका 10. So x is 70, y is 10 is here. So we'll mark this point. And second point is x is 80, y is minus 10. X is 80, and y is minus 10. So this point lies here. And the third point is x is 75, y is 0. So this is 75, this is 70, and this is 75. 75, 0 lies here. We will join these 3 points. हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन बन जाएगी. Okay, so the graphical representation of this equation is here, is this. ठीक है. So इस equation का जो graphical representation वो ये है. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्व किया.